Students, in the previous class, we were discussing about classification of goods. We will continue the same topic in today's class also. Goods are broadly classified under two heads: final goods and intermediate goods. And intermediate goods. Final goods are further divided under two heads: consumption goods and capital goods. The consumption goods are further subdivided under four heads: durable goods, semi-durable goods, non-durable goods, and services. Whereas capital goods are further divided under two heads: fixed assets and inventory stock. There is no further classification of intermediate goods. In previous class, I explained you the meaning of final goods with its examples. Thereafter, you came to know what is consumption goods with some examples and all its subdivisions, that is durable goods, semi-durable goods, non-durable goods, and services. Let me remind you once again the meaning of final goods, consumption goods, and its further classifications. What does final good mean? Final goods, what is the meaning of final goods? Goods which are used by consumers for consumption purpose, or goods which are used by producers for investment purpose, are termed as final goods. I repeat, goods which are used by consumers for consumption purpose and goods which are used by producers for investment purpose are termed as final goods. Examples: if consumers purchase fruits, vegetables,
clothes, mobile, television, etc. for consumption purpose, then all these goods will be categorized as final goods. On the other hand, if firms or producers purchase tractors, equipments, machinery, etc. for investment purpose, for the purpose of investment, then all these goods will also be categorized as final goods. The meaning of final goods has two parts. The meaning of final goods has two parts. In the first part, I stated that goods which are purchased by consumers for consumption purpose are termed as final goods, and goods which are purchased by producers for investment purpose are also termed as final goods. Examples: if consumers purchase fruits, vegetables, clothes, mobile, laptop, etc. for their consumption purpose, then all these goods will be categorized as final goods. And if firms or producers purchase tractors, machinery, tools and equipments for the purpose of investment, then also these goods will be categorized as final goods. The final goods are broadly divided under two heads: consumption goods and capital goods. Now the question arises, what are consumption goods? The goods which directly fulfill the wants of the consumers are termed as consumption goods. The goods which directly fulfill the wants of the consumers are termed as consumption goods. Milk, bread, butter, fruits, vegetables, clothes, furniture, etc. All these, if they are purchased by consumers and they directly fulfill the wants of the consumers, then all these goods will be categorized as consumption goods. The consumption goods are further divided under four heads: durable goods, semi-durable goods, non-durable goods, and services. Let's know them one by one. What are durable goods? Goods which can be used again and again over a long period of time, say more than a period of 1 year, then those goods are termed as durable goods. Goods which can be used again and again over a long period of time, that is more than a year, then those goods are categorized as durable goods. Examples: your mobile phone that you are using, it is normally that you use your mobile phones more than a year, then these are examples of durable goods. Furnitures, laptop, all these are examples of durable goods since they are used for again and again over a long period of time. Normally they are used more than a year. That's why they are termed as durable goods. Semi-durable goods, goods which can be used again and again over a limited period of time, not for a long period of time, but for a limited period of time, say less than a year. Then those goods are termed as semi-durable goods. Goods which can be used again and again for a limited period of time, that is not more than a year, are termed as semi-durable goods. Clothes, shoes, crockery, etc. All these are examples of semi-durable goods. Next, non-durable goods. Goods which lose their identity.
in a single act of consumption are termed as non-durable goods. Goods which lose their identity in a single act of consumption are termed as non-durable goods. Its examples are milk, fruits, vegetables, etc. When you use milk, when you consume fruits, vegetables, they lose their identity. That's why they are termed as non-durable goods. And lastly, services. By services, we mean that which cannot be seen, that which cannot be touched, that which do not have any shape and size, but that which still fulfill our wants are termed as services. The service that I am providing you right now, you cannot see that service, you cannot touch that service. That service do not have any shape and size, but still it fulfills your wants. It will be categorized as service, service provided by a teacher, service provided by doctors, service provided by engineers. All these are its examples. Next is capital goods. Capital goods. What does capital good mean? Goods which can be used for further consumption in the form of fixed assets, or inventory stock lying with the producer at the end of the year are termed as capital goods. I repeat it. Goods which are used for further consumption in the form of fixed assets or inventory stock lying with the producer at the end of the year are termed as capital goods. Capital goods gets divided under two heads: fixed assets and inventory stock. Fixed assets, the examples of fixed assets are machinery, building, tools and equipments, etc. Whereas inventory stock means, by inventory stock we mean raw materials, semi-finished goods and finished goods lying with the producer at the end of the year are categorized as inventory stock. So its examples will be, the examples of inventory stock will be raw materials, semi-finished goods and finished goods lying with the producer at the end of the year. Now, what does intermediate good mean? The question is, what are intermediate goods? Goods which are used in the production of other goods. Goods which are used in the production of other goods are termed as intermediate goods, or goods which are purchased by firms for the purpose of resale are also termed as intermediate goods. I said goods which are used in the production of other goods. Suppose if wheat is used for the production of flour, then wheat will be categorized as intermediate goods. If flour is used in the production of bread or biscuit, then flour will be considered as intermediate goods. If mango is used for producing a mango juice, then mango will be categorized as intermediate goods. Its other part, आप सभी अपना स्पीकर ऑफ कर लें. Its other part is
or goods which are purchased by business firms for the purpose of resale in the same year are also termed as intermediate goods. If a cloth seller purchase ready-made garments for the purpose of resale in the same year, then that cloth will also be categorized as intermediate goods. I repeat it once again. Intermediate goods. By intermediate goods, we mean the goods which are used in the production of other goods. If cotton is used for producing cloth, then cotton will be categorized as intermediate good. If cloth is used in the production of trousers, then cloth will be categorized as intermediate good. Its other part is, if goods are purchased with the purpose of resale in the same year, then those goods are also categorized as intermediate goods. Suppose if as a cloth merchant I am purchasing cloths with an objective to resell it in the same year, then the cloth purchased by me will also be categorized as intermediate goods. गुड्स वस्तुओं को हमने दो वर्गों में बांटा है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सवाल, फाइनल गुड्स होता क्या है? तो ऐसी वस्तुएं जिनकी खरीद की जाती है उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल करने के लिए, या ऐसी वस्तुएं जिनकी खरीद की जाती है उत्पादक द्वारा या संस्थाओं द्वारा निवेश करने के उद्देश्य से, उन वस्तुओं को हम कहते हैं फाइनल गुड्स। अगर एक उपभोक्ता के तौर पर मैं दूध, फल, सब्जियां, फर्नीचर, मोबाइल, बाइक वगैरह की खरीद कर रहा हूं खुद इस्तेमाल करने के लिए, तो ये सभी की सभी चीजें फाइनल गुड्स की श्रेणी में आएंगी। अगर एक संस्था या एक उत्पादक फर्म या फिर प्रोड्यूसर ट्रैक्टर, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मशीनरी वगैरह की खरीद कर रहा है निवेश के उद्देश्य से, तो भी ये सभी वस्तुएं फाइनल गुड्स की श्रेणी में आती हैं। फाइनल गुड्स के अर्थ को अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसका अर्थ जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। ऐसी वस्तुएं जो खरीद की जाती हैं उपभोक्ता के द्वारा उपभोग करने के लिए, या ऐसी वस्तुएं जो खरीद की जाती हैं उत्पादक के द्वारा या संस्था के द्वारा निवेश करने के उद्देश्य से, उन वस्तुओं को हम कहते हैं फाइनल गुड्स। उदाहरण देते हुए मैंने कहा, अगर मैं एक उपभोक्ता के तौर पर दूध, फल, सब्जियां, मोबाइल, बाइक, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह की खरीद कर रहा हूं इस्तेमाल करने के लिए, तो ये सभी की सभी चीजें फाइनल गुड्स की श्रेणी में आएंगी। वहीं अगर एक संस्था या फिर एक उत्पादक ट्रैक्टर, मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की खरीद कर रही है, तो भी ये सभी वस्तुएं फाइनल गुड्स की श्रेणी में आती हैं। फाइनल गुड्स को दो वर्गों में बांटा गया है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, स्नेहा का वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, थोड़ा आप देख लीजिए। वो कह रही है कि बोलो सर से थोड़ा। अभी के लिए आप YouTube पर देख लेना, ठीक है? उसे बोल दो YouTube पर देख लेगी। मैं इस सिलसिले में उनसे बात करूंगा कि एक बच्ची थी जिसका कनेक्शन ज्वाइन नहीं हो पाया, ठीक है? अभी आप क्लास अटेंड कीजिए। तो मैं था कंजम्पशन गुड्स पर।
आपको अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को भी, एट द एंड और एट द स्टार्टिंग आप बोल सकते हो, ठीक है, बीच में ऐसे इंटरप्ट न करें। कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो सीधे तौर पर उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें हम कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। ऐसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें हम कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। जैसे कि फल, सब्जियां, दूध, ब्रेड, ये सभी की सभी वस्तुएं हमारी खाने की जरूरतों को सीधे तौर पर पूरा किया करती हैं, इसलिए इन्हें हम कंजम्पशन गुड्स की श्रेणी में रखते हैं। कंजम्पशन गुड्स को आगे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कंजम्पशन गुड्स की मीनिंग बताते हुए मैंने कहा कि ऐसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा किया करें, उन्हें हम कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। दूध, फल, सब्जियां, ये सीधे के सीधे उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा किया करती हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स को आगे 4 कैटेगरी में बांटा गया: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? तो ऐसी वस्तुएं जिनका लंबे समय तक हम बारंबार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उन वस्तुओं को हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ऐसी वस्तुएं जिनका लंबे अरसे तक, 1 साल से अधिक समय के लिए हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उन वस्तुओं को हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। उदाहरण के तौर पर मोबाइल, फर्नीचर, बाइक, कार, ये सभी की सभी चीजें ड्यूरेबल गुड्स की श्रेणी में आएंगी। नेक्स्ट, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ऐसी वस्तुएं जिनका आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक सीमित समय के दौरान, उन वस्तुओं को हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ऐसी वस्तुएं जिनका बार बार इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन एक सीमित समय तक ही उनका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 साल से कम समय तक, 1 साल से कम समय के लिए उनका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उन वस्तुओं को हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। उदाहरण के लिए कपड़े, उदाहरण के लिए तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ समय के लिए आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, 1 साल से कम समय के दौरान आप उनका बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, उन वस्तुओं को हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इसके उदाहरण क्लॉथ्स, शूज, क्रॉकरी वगैरह। नेक्स्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ऐसी वस्तुएं जिनका अगर एक बार इस्तेमाल किया जाए तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, उन वस्तुओं को हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एक बार अगर आप यूज करो और वो कमोडिटी बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी ही खो दे, उन वस्तुओं को हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि फल, आम, अगर आप एक बार आम खा रहे हो तो उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। सब्जियां, अगर आप वो खा रहे हैं तो उनका आइडेंटिटी खत्म हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जिनका हम एक बार इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल के साथ साथ ही वो वस्तुएं जो है अपना अस्तित्व ही खो देती हैं, उन वस्तुओं को हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसके उदाहरण है मिल्क, ब्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। नेक्स्ट, सर्विसेज। वो जो दिखाई न दे, वो जिसे कि आप छू नहीं सकते हो, वो जिसका कोई आकार विकार ना हो, वो जो फिर भी आपकी जरूरतों को पूरा करे, उसे हम इकोनॉमिक्स में सर्विसेज, सेवाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स,
एडवोकेट्स, इंजीनियर्स की सेवाएं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स ऐसी वस्तुएं जिनका आगे इस्तेमाल किया जाता है दूसरी वस्तुएं तैयार करने के लिए, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स के रूप में। इस शब्द को जरा ध्यान से सुने। मैं ये कह रहा हूं ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल किया जाता है आगे दूसरी वस्तुएं तैयार करने के लिए, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स के रूप में, उन वस्तुओं को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। या फिर ऐसी वस्तुएं जो प्रोड्यूसर्स के पास पड़ी रहती हैं साल के अंत तक, उन्हें भी हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स की मीनिंग दो पार्ट में बटी हुई है। ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल किया जाता है दूसरी वस्तुएं तैयार करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स के रूप में, या फिर ऐसी वस्तुएं जो प्रोड्यूसर्स के पास पड़ी रहती हैं इन्वेंट्री स्टॉक के रूप में, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। Goods which are used for further production in the form of fixed assets or goods or inventory stock lying with the producer at the end of the year are termed as capital goods. Goods which are used for further production in the form of fixed assets or inventory stock lying with the producer at the end of the year are termed as capital goods. ऐसी वस्तुएं जिनका आगे उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स के रूप में, या ऐसी वस्तुएं जो प्रोड्यूसर्स के पास पड़ी रहती हैं इन्वेंट्री स्टॉक के रूप में, उन वस्तुओं को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। फिक्स्ड एसेट्स के उदाहरण हैं बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। वहीं इन्वेंट्री स्टॉक का उदाहरण है या मीनिंग है रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, जो कि प्रोड्यूसर्स के पास साल के अंत तक पड़े रह जाते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। नेक्स्ट आपका टर्म है इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसी वस्तुएं जिनका दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। यहां पर इस शब्द का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं कि फिक्स्ड एसेट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर फिक्स्ड एसेट्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरी कमोडिटी तैयार करने के लिए, तो वो कहलाएगा कैपिटल गुड्स। मैं सिंपली कह रहा हूं ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल किया जाता है दूसरी वस्तुएं तैयार करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। उदाहरण, अगर गेहूं का इस्तेमाल किया गया आटा तैयार करने के लिए, तो वहां पर गेहूं जो है वो उदाहरण होगा इंटरमीडिएट गुड्स का। अगर आटे का इस्तेमाल किया जा रहा है ब्रेड या बिस्किट तैयार करने के लिए, तो वहां पर आटा जो है वो उदाहरण होगा इंटरमीडिएट गुड्स का। अगर कॉटन का इस्तेमाल किया जा रहा है क्लॉथ तैयार करने के लिए, कपड़ा तैयार करने के लिए, तो वहां पर कॉटन, कपास उदाहरण होगा इंटरमीडिएट गुड्स का। ये एक पार्ट हुआ इंटरमीडिएट गुड्स का, ये हाफ मीनिंग है, ये एक पार्ट है केवल इंटरमीडिएट गुड्स का। इसके दूसरे पार्ट में कहा गया या फिर ऐसी वस्तुएं जो कि खरीदी गई हो इस उद्देश्य से कि उन्हें उसी साल बेचा जा सके, उन्हें भी हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अगर एक स्कूल है और वो स्कूल किताबों की खरीद किया इस उद्देश्य से कि वो किताबें उसी साल स्टूडेंट्स को बेचेगा, तो जो किताबें स्कूल खरीद किया है, स्कूल के पास जो किताब
स्कूल जो किताब खरीद किया है वो किताबें जो है वो भी इंटरमीडिएट गुड्स की श्रेणी में आएंगी। और एक उदाहरण लें, चीकू नाम का एक दुकानदार है जो कि कपड़ा व्यापारी है। चीकू नाम का एक दुकानदार है जो कि एक कपड़ा व्यापारी है। वो कपड़ों की खरीद किया, इस उद्देश्य से कपड़ों की खरीद किया ताकि वो उन कपड़ों को उसी साल बेच सके। तो जब वो कपड़ों की खरीद कर रहा है तो उस दुकानदार के लिहाज से वो कपड़े जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स की श्रेणी में आएंगे। अगर हम किसी भी वस्तु की खरीद कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि उन वस्तुओं को हम उसी साल के दौरान बेच देंगे तो वो वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स की श्रेणी में आती हैं। अगर वो वस्तुएं वो व्यापारी एक साल के भीतर न बेच पाए, अगर वो वस्तुएं वो व्यापारी या वो स्कूल अगर वो वस्तुएं एक साल के भीतर न बेच पाए तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो व्यापारी, वो संस्थाएं जो हैं वो खुद उन वस्तुओं का उपभोग कर रही हैं और उस तरह से वो वस्तुएं जो है फाइनल गुड्स की श्रेणी में चली जाती हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल किया जाता है आगे दूसरी वस्तुएं तैयार करने के लिए, या ऐसी वस्तुएं जिनकी खरीद की जाती है इस उद्देश्य से कि उन्हें उसी साल बेचा जा सके, उन वस्तुओं को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल किया जाता है दूसरी वस्तुएं तैयार करने के लिए, या फिर ऐसी वस्तुएं जिनकी खरीद की जाती है ताकि उन्हें उसी साल बेचा जा सके, उन वस्तुओं को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। उदाहरण, अगर कॉटन का यूज किया जा रहा है क्लॉथ तैयार करने के लिए तो कॉटन एग्जाम्पल होगा इंटरमीडिएट गुड्स का। उदाहरण, अगर एक व्यापारी कपड़े की खरीद किया उसी साल कपड़ा बेचने के उद्देश्य से, तो वो कपड़े जो कि व्यापारी खरीद कर रहा है उसी साल बेचने के उद्देश्य से, वो कपड़े जो हैं उदाहरण होंगे इंटरमीडिएट गुड्स की। लेकिन अगर वो व्यापारी उन कपड़ों को उस साल के दौरान बेच नहीं पाया और वो कपड़े साल के अंत तक उसके पास पड़े रह गए तो वो उदाहरण हो जाएगा फाइनल गुड्स का। इस टॉपिक पर अगर आपके कोई भी डाउट है, गुड्स और उसके क्लासिफिकेशन को लेकर अगर कोई भी डाउट है, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। If you have any sort of doubt related to this topic, goods and its classification, you can now ask me questions. Any further question? Any doubt? So in the upcoming class, in the next class, I am going to teach you the meaning of gross investment, the meaning of investment. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। In the upcoming class, I am going to teach you the meaning of investment, gross investment, and net investment, with the meaning of depreciation and its use. आप अगले क्लास में आपको बताया जाएगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या है। ठीक, इसकी मीनिंग आपको अगले क्लास में मैं बताऊंगा। आपके लिए ये काम मैं दे रहा हूं इस क्लास में कि अभी आपको जो एक्सप्लेन किया गया है गुड्स की मीनिंग और इसके क्लासिफिकेशन जो आपको बताए गए हैं, उसके आधार पर आप आइडेंटिफाई करें
आपके बुक्स में ऐसे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, कैपिटल गुड है या कंजम्पशन गुड है, आपको ये क्लासिफाई करना होगा। तो ये आपका आपके लिए आप होमवर्क के तौर पर आप इसे ले सकते हो कि आप कि बुक में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं गुड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन पर, उन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ें, आइडेंटिफाई करें कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। फाइनल गुड है तो फाइनल गुड में कंजम्पशन गुड है या कैपिटल गुड है। कंजम्पशन गुड है तो उसमें सेमी ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है या सर्विसेज है। कैपिटल गुड्स है तो फिक्स्ड एसेट है या इन्वेंट्री स्टॉक है। इंटरमीडिएट गुड्स है तो क्यों इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल गुड्स है तो क्यों फाइनल गुड्स है। आप खुद से क्वेश्चन करें और आंसर दें। अगर कहीं किसी भी स्टेटमेंट में आपको डाउट हो तो आप अगले क्लास के बिगिनिंग में पूछ सकते हो। साथ साथ इन टॉपिक्स को एक बार जरूर देख लें। इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कोई डाउट है अभी? एनी क्वेश्चन? Any question related to this topic? No sir. Okay, तो फिर मैं इस क्लास को यहाँ एंड करता हूँ। Thank you sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। Thank you sir. Thank you, sir.